हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीलाक्षी सिंह और हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. In my last videos, we have completed monohybrid and dihybrid crosses, and today in my video we will be doing about sex determination and Mendel's laws of inheritance. Starting with sex determination. First of all, if we talk about human beings, so we have two sexes, that is one is male and the other one is female, right? One is male and the other one is फीमेल. अब ये सेक्सेस अराइज कैसे होते हैं, लाइक व्हाट डिसाइड्स दैट द चाइल्ड विल बी अ मेल और अ फीमेल. सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे गेमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पेक्टिव सेक्सेस. ओके, सो इफ आई से व्हाट आर गेमीट्स, in my last videos also I have told you that gametes are known as reproductive cells. They are basically reproductive cells which are produced by human beings. Okay, in human beings, basically males, they are responsible for the production of sperms, and females, they are responsible for the production of eggs or ova or ovum. Okay, so if I say कि male gamete और female gamete क्या है, so male gamete is sperm, okay, sperm, and female gametes are known as ovum, or plural is ova or eggs. Okay, if I talk about the system in human beings which is basically responsible for the production of these gametes is human reproductive system. Human reproductive system is responsible for the production of reproductive cells or gametes. If I talk about male reproductive system, so male reproductive system helps in the production of sperms, and female reproductive system helps in the production of ova or eggs or ovum. Okay, ovum is singular, ova is plural, okay, and egg is singular, eggs are plural. Fine. अब बात करते हैं the organs which are responsible in humans, in male and female, which organs in their reproductive system is responsible for the production of these cells. Okay, in males, yeah, so in males, testes is that organ which is responsible for the production of sperms, and in females, ovaries are responsible for the production of eggs. There is a pair, okay, in males also a pair of testes is present, and in females also a pair of ovaries is present. So ये pair है जो दोनों चीज़ों का, दोनों का ovaries and testes दोनों का pair है which is responsible for the production of these gametes. Okay, gametes are basically reproductive cells. Okay, so before starting with sex determination, I would like to tell you about the types of divisions which occur in human bodies. Okay, divisions यानी कि cells कौन से responsible हैं, I mean cells जो हैं हम, which cells they undergo which type of division, cells they undergo which type of division basically. Okay, so there are two types of divisions, mitosis and meiosis. Okay, so starting with the explanation. So yes, what is mitosis and what is meiosis? अब बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं,
if I say we have basically two types of cells present in our body. One is somatic cells. Somatic cells are responsible for the growth of our body, right? So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ growth वाले cells, okay? Second, reproductive cells, or they are also known as gametes, जो मैंने आपको अभी बताया, which are sperms and ovum in case of human male and female. Okay. So भी हमें पता है that if a body has to grow, its cells need to undergo some sort of division. Okay, किसी ना किसी तरह की डिवीजन होती है. अगर हम बात करें माइटोसिस और मियोसिस की, तो ये दो अलग टाइप्स की डिविजन्स हैं जो इन सेल्स में होती हैं एंड इनकी ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए और डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से ये सेल्स की ये वाले डिवीजन के साथ क्या रिलेशन है इनका आपस में, कि हम बोलें कि सोमैटिक सेल्स दे अंडरगो माइटोसिस एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स दे अंडरगो मियोसिस. What does this mean actually? So, starting with an alternate name for both these divisions, mitosis is known as equational division, and meiosis is known as reductional division. Okay. सो इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशनल मीन्स वो मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स दे डू मल्टीप्लाई, ओके, दे डू मल्टीप्लिकेशन. सो इक्वेशनल डिविजन्स मीन्स द सेल्स विल मल्टीप्लाई. एंड इन रिडक्शनल डिवीजन, ऑब्वियसली नेम से पता चल रहा है, द नंबर विल बी रिड्यूस्ड. अब नंबर किसका? सेल्स का नहीं, क्रोमोसोम नंबर. ओके, द क्रोमोसोम नंबर हियर it remains same basically. Chromosome number, if I say, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ chromosome number will remain same. Okay, अब ये कैसे होगा, that also I will tell you. And in reductional division, the chromosome number will be reduced to half. Chromosome number will be reduced to half. तभी इसका नाम है रिडक्शनल, मीन्स क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस्ड. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम एंड इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. अब बात करें रिप्रोडक्टिव और सोमैटिक सेल्स की, इसके रिलेशन की. ओके, ये डिवीजन कैसे रिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है. बेसिकली सोमैटिक सेल्स जो हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो अब आप लोग ये खुद सोच के बताइए कि हमारी बॉडी ने जब ग्रो होना है, व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग, अपने ग्रोइंग पीरियड में है, तो कंटिन्यूसली उसके सेल्स तो डिवाइड करते जा रहे हैं, ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसके ऑर्गन्स और डेवलप हो रहे हैं, राइट. ग्रोथ के लिए तो आपको पता है ना, 2 cells दे विल बिकम 4 एंड 4 विल बिकम 8, इस तरह से, राइट. सो बेसिकली सोमैटिक सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. उसके लिए हम क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं करना चाह रहे हैं. ओके, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. ओके, आई रिपीट वंस अगेन कि जो सोमैटिक सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. सो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर नीड्स नॉट टू गेट रिड्यूस्ड टू हाफ, सो इट विल रिमेन सेम. एंड इन माइटोसिस ऑल्सो ऐसा ही होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. सो इसीलिए सोमैटिक सेल्स में कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस, विच इज इक्वेशनल डिवीजन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मियोसिस. मियोसिस में और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या रिलेशन है? ओके, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या गेमीट्स हम जिनको बोले हैं, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पर्म्स और ओवम, बेसिकली जैसे बॉडी के हर सेल में वी हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स. तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर मदर से 46 आए थ्रू ओवम, फादर से भी 46 आ गए थ्रू स्पर्म्स, ओके,
फादर से भी 46, मदर से भी 46, तो द चाइल्ड विल एक्वायर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 92 क्रोमोसोम इन ईच सेल, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट? सो प्रैक्टिकली एक ह्यूमन बींग में, फॉर अ स्टेबल एंड अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, इट इज़ important to have 23 pairs only, right? Means it is important in a human being, in a normal human being, to have 23 pairs of chromosomes. But 92 chromosomes होना is not normal at all, right? It is not normal at all. So इसीलिए क्या होता है, नेचर ने क्या इनको एक अलग तरह की डिवीजन के लिए रखा, राइट? इनमें डिवीजन एक अलग तरह की होगी. उसमें व्हाट विल हैपन कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, दैट दोज क्रोमोसोम इन बोथ द पेरेंट्स, in mother and father, during reproduction the chromosomes they get reduced to half. Okay, means 46 chromosomes in mother, they will become 23. In the 46 chromosomes in father which are present in sperms, they will be reduced to 23. उससे क्या होगा? 23 plus 23 means 46 chromosomes will be attained in the child also, right? So which is a normal number, means 46 chromosomes आ गए या 23 pairs आ गए तो वो normal है. इसलिए chromosome numbers का half होना is important, okay, to attain a normal chromosome number in the next generation also. Fine, I hope it is clear. Yeah, so इसलिए reductional division होती है, यानी कि chromosome number it gets reduced to half in case of this reproductive cells, right? So gametes और reproductive cells में कौन सी division हो रही है? Meiosis, reproductive cells. Okay, एक और बात, हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़ा था अपनी उस वीडियो में जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी, राइट? सो हैप्लॉइड नंबर इज दैट नंबर इन विच ओनली वन क्रोमोसोम पेयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट. Means 46 में से only 23 वाला set will be there. Okay, that is haploid number. Means n number of chromosomes will be there. And 2n chromosomes means 23 plus 23, जिसमें complete set आ गया. That is known as what? Diploid set of chromosomes. So what will happen? Let me tell you. See, if we see the division process in both these mitosis and meiosis, what happens is, like सबसे पहले 2n chromosomes हैं. 2n means double set. So here I will write 2n means diploid set and n means haploid set. Okay, so 2n chromosomes, they will remain 2n. Like this, they will remain 2n. Means अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस की यहाँ पे, तो वो 2n रहा. मीन्स यहाँ पे भी डिप्लॉयड सेट रहा, सेकेंड स्टेप में भी इट रिमेन्ड डिप्लॉयड एंड अगेन डिप्लॉयड. सो मीन्स क्रोमोसोम नंबर इट रिमेन्ड सेम, उसका हाफ नहीं हुआ. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट मियोसिस, व्हाट हैपन्स हियर? फर्स्ट डिवीजन तो एज इट इज रहती है. फर्स्ट डिवीजन इज सेम लाइक माइटोसिस, मीन्स क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता नहीं. बट जब स्पर्म और ओवम आ गए इकट्ठे, अब इनको आगे कंबाइन होना है, तो उस स्टेप में ये जो अपना इंडिविजुअल नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है इनका, लाइक दिस. 2n is reduced to nn, this 2n is reduced to nn, means haploid set. Okay, haploid set बन गया nn nn small n. Okay, means 23 and 23. अब इसमें से कोई एक 23 आएगा. इफ वी एज्यूम कि ये चारों स्पर्म्स हैं तो इनमें 23 सेट्स ही हैं, आई मीन 23 क्रोमोसोम्स ही हैं. ओके, एंड इन केस ऑफ ओवम ऑल्सो, एग में भी यही होगा, 23 आएंगे. सो कोई भी एक एग में से एक साइड से 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, स्पर्म से 23 आएंगे एंड अगेन वो रीयूनाइट होके 46 क्रोमोसोम्स कंप्लीट कर देंगे. आई होप इट इज क्लियर. Yeah, so just note it down, take 2 minutes and complete it.
Yes, I hope you have noted it down. Now, continuing with the sex determination part. Okay, so let me tell you about the chromosomes which are present in human male and female. Okay, in human males we have X and Y chromosomes, right? And in human females it is X and X, like this. X, Y in human males and XX in human females. ओके, सो अब होना क्या है, अगर हम बात करें, मैंने आपको भी बताया कि होगा क्या, 23 क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से और 23 दूसरे पेरेंट से आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, राइट? सो हम बात करें अगर, तो एक्स और वाई ये मिलके टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, दोनों का ऐड करके देयर आर 46. एक नॉर्मल ह्यूमन में इफ़ वी टॉक अबाउट यू एंड मी या कोई भी इंडिविजुअल ले लें तो उनमें नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स, राइट? सो ये 46 हैं, इसमें अपने 46 हैं. तो अभी हमने यही पढ़ा कि 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमोसोम्स दे कांट ऐड अप एंड उसके बाद वो 92 बना के नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आ सकते हैं. ओके, तो होगा क्या, जो ये 46 हैं दे विल बी रिड्यूस टू 23 and ये वाले 46 also will be reduced to 23 chromosomes. Okay, if I talk about X and this Y, तो 23 इसमें है और 23 इसमें है. Means if I talk about X and Y ना, तो in one X it is 23, the Y carries 23. Okay, and इसमें भी 23 chromosomes और इसमें भी 23 chromosomes होते हैं. और अभी हमने यही पढ़ा ना कि 23 एक पेरेंट से आएंगे, 23 दूसरे से, राइट? तो अगेन 46 हो जाएंगे. अब होगा क्या, इन दोनों में से X और Y में से कोई एक आएगा 23 लेके और इधर से X और X में से कोई भी एक X आ जाए 23 लेके. तो द नेक्स्ट चाइल्ड विल बी बॉर्न विद अ नॉर्मल क्रोमोसोम काउंट ऑफ 23 पेयर्स और 46 chromosomes. I hope it is clear. Now I will be explaining the same topic to you in the form of a flow chart. Okay? Okay. So if I talk about human males have X and Y chromosomes. Okay, so मैं यहाँ पे लिखती हूँ father. Okay, and human mother or human female carries X and X chromosomes. Okay, and वो हमें पता है कि इसमें 23 इसमें 23 और 23. अब कोई एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा विच विल डिसाइड द एक्चुअल सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ओके, सो अगर मैं एज्यूम करूँ तो x और y में से कोई एक, तो यहाँ में मैं एज्यूम कर लेती हूँ x आ गया नेक्स्ट जनरेशन के लिए. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस. इन दिस केस नीदर फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉर मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि कौन सा क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाला है. Okay, some sperms are X chromosome carrying sperms, some are Y carrying sperms. हमने पढ़ा है ना कि जो sperms हैं they are million in number, right? And only one egg comes at a time, right? So egg के केस में तो only X is present ना, दोनों में से कोई भी X आ जाए, it is one and the same thing, right? But in case of males or in case of the father, कोई भी एक, any one of these two chromosomes it comes, right? So let us say X आ गया, तो होगा क्या इस केस में X and X will combine to give XX chromosomes in the next generation. Means XX यानी कि it will be a daughter. Means one X मदर से आया, एक X फादर से आया. अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि फादर से नेक्स्ट टाइम कौन सा कोई, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस ना, कि एक बार अगर एक एक्स आ गया तो वाई भी तो आ सकता था. तो भी हम वाई को लेके देखते हैं. अगर इस केस से वाई आ गया, इन अदर केस वाई आया, तो अगर वाई आता है इधर से तो अगेन पॉसिबिलिटी एक्स की है, कुछ और है नहीं यहाँ पे, राइट? सो एक्स ही आया यहाँ पे, तो क्या बन गया एक्स एंड y means the offspring will be a son. Okay, or you can write son की जगह male child. Okay, and daughter की जगह you can write
female child. Okay, like this. Okay, I hope it is clear. x and y दोनों बाइफरकेट कर जाते हैं, इधर x और x दोनों बाइफरकेट कर जाते हैं, मीन सेपरेट, दे गेट सेपरेटेड. एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इन दोनों में से कोई एक आता है, इसमें से तो x ही आता है, सो कोई पॉसिबिलिटी नहीं x x. अगर इधर से y आया तो x y बन के सन इज बॉर्न. I hope it is clear to you. This is a very easy cross and from board point of view also it is important. Sex determination topic आपसे directly पूछा जाता है कि what do you understand by this process and how can you explain it in the form of a flow chart. Okay, so आपको ये flow chart draw करना है, उसमें this is a very simple flow chart, right? आपको कोई sperms draw करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, that is not necessary, but yes, if you can draw that is your wish. But this is a very simpler version कि आप किस तरह से इस चार्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो. एंड आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं. आई एम राइटिंग CHR, ओके, एंड इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं. तो हेयर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स, राइट? एंड हेयर ऑल्सो 46 क्रोमोसोम्स. यू कैन राइट दिस वे. ओके, just take 2 minutes and quickly note it down. So yes, I hope you have noted it down. So मैंने आपको बोला था कि आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन और मेंडल के कुछ लॉज के बारे में समझेंगे. ओके, वी हैव कंप्लीटेड सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने यहाँ पे फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों ड्रॉ कर दिया. बेटा, आपको मैंने ये समझाया था कि मेंडल ने जो लॉज दिए थे उसके बेसिस पे उनके कुछ क्रॉसेस थे जो उन्होंने एक्सप्लेन किए. वो क्रॉसेस तो हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन उनके लॉज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इन क्रॉसेस के साथ कैसे रिलेट करता है. ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल विच इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. Second law is law of segregation, and the third law is law of independent assortment. मैंने ये क्रॉस कम्प्लीटली नहीं बनाया बिकॉज इसके बाद जस्ट 1-2 स्टेप्स बाकी हैं. वो ये हैं कि हमने इसकी रेशियोज़ लिख देनी है, विच इज़ 1:2:1, विच इज़ जीनोटिपिक रेशियो, एंड 3:1 इज़ फिनोटिपिक रेशियो. ये आपको पता है. ओके, सो अभी मेंडल ने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है. उन्होंने ये बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स द डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट. मीन्स डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव वन. ओके, ये तो हमने पढ़ा लाइक दिस कि जो रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, स्मॉल r इज प्रेजेंट, बट द ऑफस्प्रिंग वी हैव सीन ऑल विल बी राउंड, ऑल सीड्स विल बी राउंड, एंड इन दिस केस ऑल्सो इट इज द सेम, राइट? राउंड ही रहेगा दोनों केस में. तो इसका मतलब यही है ना कि जो डोमिनेंट एलील है इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओवर द रिसेसिव वन. ओके, इन ऑल मीन्स कोई चांस ही नहीं है कि रिसेसिव वाला अपना एक्सप्रेशन शो कर पाए ओवर द डोमिनेंट वन. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस means the dominant one expresses itself in the form even in the presence of the recessive trait or recessive allele. Okay, I hope the first law is clear. ये laws बहुत simple हैं, बस इनकी जो accurate definitions हैं that you have to write. I'll drop my notes, I'll give you my link in the description, then you will be able to refer. Okay, so अभी बात आ गई सब राउंड सीड्स हैं. ओके, गेमीट्स आगे बने एंड उसके बाद ये सेकेंड जनरेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ पनेट स्क्वायर. आई हैव एक्सप्रेस्ड इट. सेकेंड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का इंग्लिश मीनिंग है सेपरेशन. सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. सो इस केस में हो क्या रहा है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप विल बी पेरेंट्स, सेकेंड स्टेप विल बी जीनोटाइप एंड द थर्ड स्टेप विल बी गेमीट्स. और मैंने आपको यही बोला था गेमीट्स में और जीनोटाइप में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट यू हैव टू पुट अ कॉमा इन बिटवीन द बोथ द अल्फाबेट्स, राइट? ये देखो
लाइक दिस। आपको बताया था मैंने, जीनोटाइप इज एक्सप्रेस लाइक दिस, और गेमीट्स में हम सिर्फ उसमें कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा के हम उसे सेपरेट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स। हमने आज सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा और उसमें हमने यही समझा कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। ठीक है, वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद उनके न्यू कॉम्बिनेशंस दे आर फॉर्म्ड, राइट। एक्स वाई के साथ मिल रहा है या एक्स एक्स के साथ मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। सो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि द एलील्स इन दिस स्टेप, गेमीट स्टेप में दे आर सेपरेटेड, मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब है? Independent assortment means they are independently arranged or expressed. Okay, independent है, they are not dependent of each other. जब दूसरा आता है तो सिर्फ इतना ज़रूर होता है कि dominant वाला अपना expression दे देता है, but we can't say कि वो एक दूसरे पे dependent है. They are independently expressed in the next generation, और वो चीज़ हम dihybrid cross से better explain कर सकते हैं. I hope you remember dihybrid cross में हमने क्या पढ़ा था कि जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे थे, राइट। वो किस तरह से एक्सप्रेशन शो कर पा रहे थे, दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स। सो इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू समराइज इट। Mendel gave 3 laws. First is law of dominance, second is law of segregation, third is law of independent assortment. Law of dominance means जो dominant allele है it expresses itself over the recessive one. And the second one is law of segregation, means both the alleles they get separated. And law of independent assortment means they are independently expressed. X और Y के केस में भी हमने ये पढ़ा था, right, कि X और Y they are not dependent on each other for their expression. It is just a matter of chance. They are independently selected and they are expressed, okay, to give the phenotype to the next generation. Okay, so आज के लिए बस इतना ही। हमने आज sex determination we have covered, we have done the cross related to it, and the next we have completed Mendel's laws of inheritance. Okay, out of which first one is law of dominance, second one is law of segregation, and third one is law of independent assortment. ये laws आपको crosses के साथ express करने पड़ेंगे, अपनी definition लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि how this law is applicable to this cross. So there you have to explain कि इस step में हमने law of dominance prove कर दिया ऐसे. Okay. So I hope it is clear. Here we have completed heredity part of this chapter. Now from the next class we will be starting with evolution part. I hope it is clear. If you have any doubt or any feedback, you can just drop your text in my comment box. Okay. Take care. Bye bye. See you soon.